जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सॉरी संगत जी, हाथ जोड़ के आपसे थोड़े से नेटवर्क इंटरनेट प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा सा डिस्ट्रप्शन हुआ, भूल चुकी, माफ़ी महाराज। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मल्टीलिंगुअल जूम सत्संग सेवादार टीम आप सबका हार्दिक स्वागत करती है। आज गुरु जी की कृपा से हम लोग फिर इकट्ठा हुए हैं। गुरु जी की डिवाइन बुक ग्रंथ जो महाराज ने खुद अपने सामने प्रूव कराया, एंड वी आर सो ब्लेस्ड दैट आज हम उसको संगत के मुख से लाइव सुन पा रहे हैं। इट्स सच अ बिग ब्लेसिंग। सो टुडे वी वेलकम कमांडर अंकल एंड नरेश अंकल to please unmute themselves and take us on a beautiful journey. Commander Uncle, can you please initiate the session? Jai Guru Ji, Namaste Uncle. जय गुरु जी संगत जी। महाराज की बुक रीडिंग सेशन में आपका स्वागत है। मैं नरेश अंकल को बहुत समय से जानता हूँ। अगर आप ऐसी संगत को जानना चाहते हैं जो गुरु महाराज से दिल से जुड़ी हो, जो गुरु जी से कभी कुछ मांगते नहीं, कभी कोई कंप्लेन नहीं करते और केवल भोले भाव से जुड़े हुए हैं, ऐसी संगत में नरेश गुप्ता अंकल का नाम सबसे पहले आता है। मैंने इनके ऊपर गुरु महाराज की ब्लेसिंग्स होते हुए देखी है। इनको गुरु के सामने सरेंडर करते हुए महसूस किया है। तो मैं चाहूंगा कि आप सब उनका सत्संग सुने और मैं नरेश गुप्ता अंकल से प्रार्थना करता हूँ अनम्यूट करें और अपनी बुक रीडिंग प्रारंभ करें। नरेश अंकल। गुरु जी के श्री चरणों में मेरा नमस्कार। वह गुरु जी की प्यारी संगत को नमस्कार। मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ जो गुरु जी ने आज मुझे अपनी बुक में से पढ़ने के लिए अपना ही सत्संग का मौका दिया। सो मैं गुरु जी का बार बार शुक्राना करता हूँ। ये सत्संग मेरा लड़का लव गुप्ता पढ़ेगा, उसके बाद मैं आपको सत्संग शेयर करूंगा। लव रीडिंग करोगे। जय गुरु जी संगत जी। नमस्कार। Thank you for giving me this opportunity to narrate this beautiful satsang of my mother with Guruji. What we felt that time and what we have, experienced that time about Guruji. So I will narrate this from straight away from the Light of Divinity Granth. So saved from the three messengers of death. Mr. Naresh Khandelwal's wife, in her early 30s, fell ill. She was afflicted with dengue fever and her kidneys were infected. Doctors at Gurgaon refused treatment as her platelet count was below 9,000. On top of it, on a Tuesday, a vein burst and unable to contain the flow of blood, doctors advised a discharge. She was shifted to Max Hospital in Noida. So, Naresh brother was a devotee of Guruji. He and his wife he and his wife were perturbed by the sequence of events and called up another devotee to ask if they could visit Guruji on Tuesday and convey the problem. They were told not to worry, that Guruji is God, that he would not let anyone who had come to his Sharan suffer. In the meantime, the doctors at Max Hospital had also given up on her. Thursday came and Naresh went to Guruji. As he was touching Guruji's feet, he could not help himself and told Guruji that his wife was suffering from dengue. Guruji's response was in itself a promise. डेंगू डेंगू की होंदा है, चल जा, कुछ नहीं होया उसनु. So what's dengue? Go, nothing will happen to her, Guruji said. As soon as Naresh came back to the hospital, the wife's platelet count started going up with every test, like from 12,000 to 30,000, 50,000, 1 lakh, 1 lakh 50,000. She was responding to the treatment with Guruji's blessings. So one night at the hospital, she woke up screaming
Everyone around her asked what had happened. The lady said that she had a nightmare. She had seen the three short black men dragging her away. The people around her were not able to stop them, even though she was pleading to be rescued. Then she remembered Guruji and prayed to him for help. Guruji came and the Yamdoots went away, and the lady was saved. She saw the same dream twice and started feeling that it was only Guruji who had granted her life, because only he can do so. Within a week, she was discharged and she recovered and was put on dialysis in order to make her kidney functional. Today, that time she able to perform the role of a mother, wife, and daughter. She recovered fully in the 15 days. Guruji shooed the messengers of death away from her. Who else can do this except God? Jai Guruji. गुप्ता अंकल, आपका ये सत्संग हमने न केवल सुना है बल्कि होते हुए देखा है। ये मिरेकल के हम विटनेस हैं। तो मैं चाहूंगा कि सबसे पहले आप गुरु महाराज के पास जब इस कंप्लेंट को लेके आए तो किस तरह की फीलिंग थी? जब संगत जी, मैं मैक्स हॉस्पिटल से में था, जिस दिन मैंने एडमिट किया था अपनी वाइफ को, जब डॉक्टर ने जैसे ही इमरजेंसी में मेरी वाइफ को देखा और देखकर जब वो बोले कि आप किसको लेके आए हैं, उस दिन बड़ी दिवाली थी, ये सन 2005 की बात है। तो जैसे ही उन्होंने देखा, देखते ही वो बोलते हैं कि आप किसको लेके आए हैं, आपकी तो दिवाली खराब होगी, प्लस मेरी भी हो जाएगी, क्योंकि उन दौरान डेंगू चला ही चला था। और वो बोलती है कि पूरा दिन मुझे डॉक्यूमेंट्स बनाने में लग जाएंगे, प्लीज आप इसको ऑल इंडिया या कहीं भी लेके जाएं, लेकिन ये बचेगी नहीं। आपको मैं संगत जी बता नहीं सकती, जब वो ये शब्द बोल रही थी, मैं वहीं आईसीयू में बेड के पास बैठ गया और मेरे आंखों में पानी। मैं रोता रहा कि गुरुजी ये क्या, कल परसों तक तो ये ठीक थी और आज ये मुझसे कह रहे हैं कि ये मेरे आंखों के आगे चली जाएगी। मैं आपको बता नहीं सकता कि मेरी क्या कंडीशन थी कि उसी वक्त मेरे छोटे भाई ने मेरे कंधे के ऊपर हाथ रख के बोला कि भाई अभी क्यों परेशान हो रहा है, तुझे पता है कि हम ऐसे गुरु के पास जाते हैं जहां गुरु जी के पास परिवार का अगर एक सदस्य भी चला जाता है उसकी 7 पीढ़ियां तर जाती हैं। यहाँ तो हम सह परिवार जाते हैं। आप बिल्कुल मत घबराओ, भाभी को कुछ नहीं होगा और गुरु जी हमारे साथ हैं, कुछ नहीं होगा। वो बड़े उससे हिम्मत बंधा रहा था, लेकिन मैं उसकी तरफ कहता हूँ कि भाई इसमें गुरु जी क्या करेंगे, जब डॉक्टर ये कह रहा है कि इसमें कुछ नहीं है और ये जाने वाली है। तो बोला नहीं कुछ नहीं होगा। उन्होंने डॉक्टर की तरफ कहा कि डॉक्टर साहब इसका इलाज कीजिए, हम डेथ बॉडी ले जाएंगे लेकिन इसको ऐसी हालत में हम किसी दूसरे हॉस्पिटल में नहीं लाएंगे, इलाज आपको ही करना है। जब उस पर दबाव पड़ा तो उसको मजबूरन आईसीयू में भर्ती करना पड़ा और वो सारी रात उसमें ट्रीटमेंट। देखो गुरुजी की मेहर और गुरुजी की ब्लेसिंग मुझे उसी दिन मिल गई जब हम तीनों भाइयों की जो प्लेलेट्स दी गई वो सेम थी। और सेम जब उनको दी गई, सारी रात जैसे निकाली, दूसरे दिन होता है मैं गुरुजी के बड़े एम्पायर स्टेट में जाना चाहता हूँ। मैं अपने भाई से बोलता हूँ कि मुझे गुरुजी से मिलना है, मुझे एक बारी मंदिर लेके चलो। तो वो मुझसे कहता है कि भाई आज गुरुजी नहीं मिलेंगे क्योंकि बुधवार है, अपन कल चलेंगे। तो वो कहता है, बार बार मना करता है। वो कहता है पर एक शर्त पे जाऊंगा तेरी जिद के मारे कि मैं बाहर खड़ा हूंगा, आप अंदर अकेले जाना। मैंने कहा ठीक है। संगत जी मैं अंदर गया एम्पायर स्टेट का पास कोठी में। जैसे ही मैंने गेट खोला, सामने से एक सेवादार आया। वो बोला हाँ अंकल बोलिए क्यों आए हैं? मैंने कहा मुझे गुरुजी से मिलना है, दिन का टाइम था। तो बोलते हैं गुरुजी तो कल बैठेंगे। मैंने कहा नहीं मुझे तो अभी मिलना है क्योंकि गुरुजी तो यहीं रहते हैं, प्लीज एक बार मुझे गुरुजी से मिला दो। वो सेवादार मुझसे बोलता है कि अंकल अभी गुरुजी नहीं मिलेंगे। तो मैं जब वो बार बार मना करता है तो मैं वहीं बैठ जाता हूँ गेट के पास और मेरे आंखों में रोना आ रहा होता है। वो मुझसे बोलता है अंकल ऐसी क्या बात हो गई है? मैंने कहा अंकल एक बार मुझे गुरुजी से मिला। तो वो अंदर जाता है और अंदर जाने के बाद फिर वो लौट के आता है और मुझसे कहता है कि अंकल आपका नाम क्या है? मैंने कहा नरेश गौड़। क्या काम है? मैंने कहा मेरे भाई को डेंगू हो गया है, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, इस सिलसिले में मैं गुरुजी से मिलना चाहता हूँ। संगत जी जब वो इतनी बात बोलकर फिर अंदर जाता है और अंदर से मेरे लिए लंगर प्रसाद यानी 2 चपाती, घी की सब्जी और एक चाय प्रसाद,
ये लाकर मुझे अंकल देते हैं और अंदर बिठा के मुझे कहते हैं अंकल आप ये चाय प्रसाद लो, लंगर लो, और गुरुजी ने बोला है कि कल आना, और कभी भी अगर आपको अरदास लगानी है, यानी संगत जी ये सन 2005 में गुरुजी ने मुझे संदेश दिया था कि कभी भी अगर आपको अरदास लगानी है तो बड़े मंदिर जाया करो। मैं वहाँ 365 दिन 24 घंटे बैठता हूँ, और आप कल आना। ये मुझे उन्होंने कहा तो मैं लंगर प्रसाद और चाय प्रसाद लेके आ गया। मैंने वहाँ खाया और वापस मैं गाड़ी में आया। छोटे भाई मुझसे बोला क्या हुआ, मैंने कहा उन्होंने कल के लिए बोला है। दूसरे दिन संगत जी पूरे दिन कैसे निकाला मेरा जी जानता है, पूरी रात कैसे निकाली, मैं बेचैन था कि किसी तरीके से मुझे गुरुजी मिल जाए। दूसरे दिन जैसे ही थर्सडे हुआ, मैं वहाँ 5 बजे जाके गेट के आगे बैठ गया, और जैसे ही गुरुजी 6 बजे अपनी ड्रेस में आते थे, सिंपल ड्रेस में वहाँ स्टेचू पे बैठते थे, मैंने मत्था टेका और वहीं साइड में मैं बैठ गया। और जैसे ही गुरुजी अंदर गए, चोले में आए, अपने सिंहासन पर बैठे, शब्दवाणी चली, लेकिन मैं अंदर ही अंदर आंख मीच के, सरदार जी जो म्यूजिक चलाते थे उसके साइड में मैं बैठा था कोने में, और मैं रो रहा था, और मैं बार बार कह रहा था कि गुरुजी मेरी वाइफ को बचाओ, गुरुजी मेरी वाइफ को बचाओ। जब मैं इतना बोल रहा था, जैसे ही गुरुजी ने लंगर प्रसाद आया, मत्था टेकने का मेरा नंबर आया, मैं गुरुजी के पास गया, और गुरुजी के पास जाते ही मैंने गुरुजी के चरण पकड़ लिए, और मैंने कहा गुरुजी मेरी वाइफ को बचाओ। संगत जी गुरुजी कितना प्यार करते हैं, की हुआ तेरी वाइफ नु? मैंने कहा गुरुजी डेंगू। चल ठीक हो गया, की होंदा है डेंगू? संगत जी मैं आपको बता नहीं सकता उस वक्त का मेरा खड़े होने का इतना जबरदस्त होता कि जैसे ठीक हो गई, और वही हुआ। वो आपको मैंने, मेरे बेटे ने आपको बताया कि गुरुजी ने ऐसे ठीक किया कि 15 दिन में वो ऐसे ठीक होकर निकली कि उसकी सब कुछ ठीक, जैसे उसे कुछ हुआ ही नहीं। और गुरुजी ने मेरी वाइफ को जीवन दान दिया। गुरुजी का शुक्राना। संगत जी गुरुजी अपनी संगत को इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। एक बार गुरुजी, मैं एम्पायर स्टेट से लेट हो गया था, काफी लेट हो गया, तो मैं छोटे से एक कस्बे में रहता हूँ फरूखनगर, तो मुझे साधन नहीं मिला, तो बड़ा परेशान हुआ। तो संगत परिवार यानी गुरुजी का जो परिवार है वो आपस में इतना प्यार करते हैं। तो एक संगत ने मुझसे एम्पायर स्टेट से निकलते ही मुझसे कहा कि अंकल हम फरूखनगर छोड़ाएंगे आपको, आप हमारी गाड़ी में बैठ। उन्होंने बार बार मुझसे कहा, लेकिन मैंने कहा ये संगत मुझे वहां छोड़ के आएगी नहीं। मैंने कहा अंकल आप ज्यादा करते हो तो मुझे बस स्टैंड छोड़ देना। और उन्होंने जैसे ही मुझे बस स्टैंड छोड़ा, मुझे कोई साधन नहीं मिला। जैसे तैसे आज तो फ्लाईओवर बन गया है वहाँ बसई चौक पर, पहले फाटक था। मैं वहां पहुंचा, जैसे ही मैं एक बड़े पत्थर के ऊपर बैठा तो मैंने देखा, जो लाइनमैन होता है वहां पर जो फाटक बंद करता है, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यहाँ ट्रेन कब आएगी और ये फाटक कब लगेगा, क्योंकि मैं जिसको भी हाथ दे रहा हूँ कोई नहीं रोक रहा। जब ये फाटक लग जाएगा तो कोई गाड़ी रुकेगी तो मैं उसमें बैठ जाऊंगा। मैं इतना ही सोच रहा था, तो वो बोलते हैं कि अभी मालगाड़ी आने वाली है, फाटक लगेगा अभी। और एक पत्थर, बड़ा सा पत्थर था, मैं उसके ऊपर बैठ गया। रात के 12-1 बज रहे थे। जैसे मैं उस पर बैठा और मैंने फिर गुरुजी का ध्यान किया, मैंने कहा गुरुजी मुझे लगता है कि मुझे आज कोई लिफ्ट नहीं देगा और मुझे सारी रात यहीं बैठना होगा। उस वक्त गुरु मेरे पास मोबाइल भी नहीं था, और मुझे ऐसा लगता है जो सुबह अखबार की गाड़ी आती है 4 बजे, मैं उस गाड़ी से मेरा जाना होगा, और इतने में आंटी वगैरह बच्चे सब परेशान होंगे। संगत जी इतना मैं कह के ही चुका था अपने मन के अंदर, तो एकदम से एक गाड़ी आती है, ट्रक, हाफ ट्रक जिसमें ईंट वगैरह जाती है, और वो आती है और आते ही मेरे आगे रोकता है, और मैंने उसको हाथ भी नहीं दिया, क्योंकि संगत जी वो मेरी साइड के नहीं होते, मेरी साइड कोई ईंट भट्टा नहीं होता ताकि मैं उसको हाथ देता। और उसने ब्रेक लगाए और आते ही वो बोलता है कि फरुखनगर चलना है। मैंने कहा हाँ जी हाँ जी, बोला आ जाओ। और संगत जी मैंने जैसे ही गेट खोला, मैं आपको बता नहीं सकता, बहुत अच्छा सुंदर कैबिन, छोटे छोटे बल्ब लगे हुए उसमें, और मैं बैठ गया। और बैठते ही पुरानी फिल्मों के गाने चल रहे थे उसमें। उसने 15 मिनट में ही मुझे सुल्तानपुर मोड़ के पास आके मुझसे बोलता है अब आप उतर जाओ। मैं बोला जी आप आगे तो जा रहे हैं, थोड़ा सा और मुझे आगे ले चलो, मेरा घर नजदीक आ जाएगा। बोला नहीं, मैं आपको यहीं तक छोड़ना है और मुझे यू टर्न लेना है। यानी मुझे 200 मीटर की दूरी पर उन्होंने मुझे छोड़ा। और जैसे ही मैं उतरा तो मैंने किराया देना चाहा,
किराया नहीं लिया और वो चले गए। लेकिन मैं इतना मूर्ख कि मैंने उसको धन्यवाद, थैंक यू कुछ नहीं, मैं भी अपने मन का जी आपने किराया नहीं लिया, मैंने मिन्नत करी, वो नहीं लेकर मुझे बैठ गया। संगत जी, मैं सोचता हूँ मेरे लिए स्पेशल कोई ट्रक लेकर आता है और मुझे मेरे घर के पास छोड़ के जाता है, वो कौन थे और मैं समझ भी नहीं पाया। ऐसे हैं हमारे गुरुजी। जब भी तो गुरुजी कहते हैं कि कभी मंदिर आया करो तो लाइन में आया करो, कब किस भेष में मैं खड़ा हूं तुम्हें पता भी नहीं लगेगा। यहाँ जो दर्शन करने आते हैं कौन खड़े होते हैं ये तुम्हें पता नहीं होता। तो गुरुजी का एक ओरा, गुरुजी का एक स्टाइल, बड़ा गुरुजी अपनी संगत को बहुत खिलाते हैं, आज भी खिलाते हैं, पहले भी बहुत खिलाते। जो इतना हम लोगों ने, हम मंडे जाते थे हर मंडे, क्योंकि गुरुजी ने स्पेशल बोला हुआ था मंडे में बड़े मंदिर जरूर जाया करो। तो उस वक्त लगन थी कि हर मंडे, जबकि मेरे पास गाड़ी नहीं थी, मैं बाय बस बाय वैसे जाता था। तो जैसे मैं वहां जाता इतना खाने को मिलता था कि मैं आपको संगत जी बता नहीं सकता। जब गुरुजी लास्ट सोमवार को वहां आए थे, मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा कि उस वक्त भी मैं वहां था। जैसे ही वो आए, उन्होंने बड़े मंदिर के साइड में जो पार्क है जहाँ आज फुहारा लगा हुआ है, वहां उसके नीचे घास के ऊपर चेयर के ऊपर वो बैठे और उन्होंने एकदम से सबको, हम सारी संगत बैठे थे, तो जैसे हमने गुरुजी के दर्शन किए, गुरुजी को हमने देखा और हम भी सामने बैठ गए। तो गुरुजी ने उस वक्त चल माली चाय प्रसाद लेके आ, मुर्गी छेना, मिठाई लेके आ, लड्डू लेके आए, मतलब लास्ट टाइम में भी हमने उनके हाथों से प्रसाद लिया। मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ कि लास्ट सोमवार जब गुरुजी वहां आए थे तो वो प्रसाद जितनी बारी भी दिया, जितनी बारी भी चाय प्रसाद दी, और वो हमने ग्रहण किया। गुरुजी का आशीर्वाद हमारे ऊपर है, उन सभी के ऊपर है। सत्संग तो बहुत हैं, लेकिन मैं यही कहूंगा कि गुरुजी भी कहा करते थे शॉर्ट विच किया करो। और मैं संगत से चाहूंगा कि मैं अपना समापन करता हूँ यही। थैंक यू अंकल, गुरुजी। हमारे पास थोड़ा टाइम है अभी। मैं चाहूंगा कि अच्छा आपने कहा ना कि आपके पास तब कार नहीं थी और आप बिना कार के आया करते थे, अच्छा और अच्छा अच्छा अच्छा। आपको तो कार चलानी भी नहीं आती थी। नहीं और आती थी जरा अंकल। संगत को ये बताइए कि किस तरीके से आपके पास कार आई और आपने अच्छा कैसे उसको चलाना सीखा। ये भी एक मेहर है अंकल, कमांडर अंकल। दरअसल उस वक्त ये बात होगी 2007 की, कि मैं मंदिर जाता था हर मंडे, और मतलब छोटे यहाँ एम्पायर स्टेट मंदिर जाता था। तो क्या होता था कि आंटी छोटे जो एम्पायर स्टेट होते थे तो बच्चे समय तो हम टैक्सी करके चले जाते थे, लेकिन बड़े मंदिर कभी भी मेरे साथ आंटी नहीं जाती। तो क्या हुआ, एक बार, काफी बार मेरे से आंटी ने बोला कि आप मेरे को मंडे नहीं लेके जाते, प्लीज मुझे लेके जाया करो। तो मैं उसे हमेशा ये कह देता कि जब मेरे पास गाड़ी आएगी तब मैं आपको लेके जाऊंगा, क्योंकि मैं रात को ट्रक में बैठ के या किसी चीज में भी बैठ के आ जाता हूँ। तो मुझे तो दिक्कत नहीं है, पर लेडीज साथ होती है तो मैं कैसे लेके आऊंगा। तो ये बार बार जब मैं सोचता था, तो वो मंडे का दिन था। उस दिन देखो गुरुजी की मेहर, फिर गुरुजी की कृपा क्या होती है कि मैं मंडे को जैसे ही नहा धोकर आया, और मैं तैयार हुआ मंदिर जाने के लिए, तो वो आंटी फिर बोली कि आज मुझे ले चलो, मुझे मेरा बड़ा मन कर रहा है कि काफी दिन हो गए कि मैं मंडे गई नहीं। मैंने कहा किरण आज मत जा, अभी मेरे पास गाड़ी नहीं है, मैं रात को पता नहीं 9 बजे आऊँ 10 बजे आऊँ, मेरा कोई पता नहीं। तो मेरे रूम में गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था अंदर। तो वो स्वरूप की तरफ, गुरुजी की तरफ देख के बोलती कि गुरुजी प्लीज इनको गाड़ी दे दो, मेरी बड़ी इच्छा है, मैं भी आना चाहती हूँ आप मंडे को। तो वो गुरुजी आंटियों की बड़ी जल्दी सुनते हम्म। हैं। आंटी ने गुरुजी से बोला और गुरुजी ने सुन ली। अब मेरा कोई विचार नहीं अंकल मेरे गाड़ी लेने का, कोई वो नहीं। जैसे ही मैंने कहा चल गाड़ी जिस दिन आएगी उस दिन तुझे पक्का लेके जाऊं, और ये कहकर मैं अपनी दुकान पर आ गया, क्योंकि मुझे दुकान पर पूजा करके मैं सीधा मंदिर चला जाता। मैं जैसे ही दुकान पर आया, मैंने पूजा की गुरु मतलब वहां पर दुकान पर, और जैसे ही मैं जाने को तैयार हुआ तो इतने में मेरे पास एक मतलब पड़ोसी आता है, वो मुझसे कहता है कि चाचा आप गाड़ी ले लो। मैंने कहा यार तुझे क्या सूझी आज गाड़ी लेने की। बोला चाचा मैं वहीं अपरा में लगा हुआ हूँ, मेरी जानकारी है, और आप गाड़ी ले लो। मैंने बेटा, अब मैं संगत जी उनको कैसे बताऊं कि मेरे पास पैसे नहीं, मैंने सारा पैसा अपने मार्केट में लगा रखा था। प्लस उस वक्त की कंडीशन मेरी क्या है तो मैं ही जानता हूँ, और वो सामने वाला सोचता है कि
आप गाड़ी ले लो। मैं बोला बेटा अभी मेरे को गाड़ी नहीं चाहिए, मैं जब ये सीजन चला जाएगा उसके बाद, मेरा इन्वर्टर बैटरी का काम था, मैंने कहा इसके बाद मैं लूंगा। तो वो बोला नहीं चाचा, 15-20 दिन बाद अगर आपके पास पेमेंट नहीं है, और 15-20 दिन बाद भी अगर आप पेमेंट दोगे तो आप चेक दे देना, मैं दिला दूंगा, इतनी मेरी वहां पर वो है। मैंने कहा नहीं बेटा, नगद ही या लोन पर लेंगे, पर मैं पैसे नहीं लूंगा, जब मेरे पास पैसा आएगा तभी लूंगा। जैसे तैसे मैंने उसको 10-15 मिनट लगाए और उसको संगत जी मैंने भेज दी, वो चले गया। तो मैं दुकान पे जैसे ही उठा तो सामने गुरुजी का स्वरूप दुकान पे भी लगा हुआ है। तो पता नहीं मेरे क्या मन में आई, ये सब गुरुजी कर रहे हैं, गुरुजी करते हैं, जो कुछ है उसको भेजना वो भी गुरुजी की कृपा से ही आया। और मैं वहां से खड़ा हुआ, और संगत जी एक बैंक, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, उसकी नई ब्रांच खुली थी, और 4-5 दिन पहले वो बाजार में आया था सबके करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट खोलने के लिए, सब दुकानदारों से मिलके गया था। तो वो मेरे पास भी आया था। तो मैंने कहा चल यार बैंक की तरफ चलते हैं, तो मैं स्टेट बैंक ऑफ पटियाला पर ब्रांच में गया। तो वहां अंदर फर्नीचर लग रहा था, वो बाहर मेज पर मैनेजर साहब बैठे हुए थे, एक काउंटर सा बना के। मैं उनसे बोला नमस्ते सर, नमस्ते। मैंने सर आप परसों मेरे पास गए थे करंट अकाउंट के लिए, उसके लिए। तो बोला हाँ हाँ बैठिए सर। उसने मेरा वो किया, और उन्होंने चेयर वेयर मंगवा लूँ दिखता, हाँ सर बिल्कुल है, बोलो कौन सा अकाउंट। मैंने कहा जी अकाउंट तो खोल देंगे, तो आप लोन भी करोगे क्या गाड़ी का? बोला क्यों नहीं करेंगे भाई साहब, बिल्कुल करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, जिस दिन आपकी ये बिल्डिंग बन जाए जब भी आप दोगे। बोले नहीं नहीं अभी दे देते हैं और अभी ले लो। मैंने कहा जी अभी, अब मैं अब उसको बोला अभी दे देते हो, बोला उसने, मैं बोलूँ इससे पहले उसने घंटी बजाई, जो टेबल पर घंटी होती है पुराने टाइम की। तो पिए आया, वो बोला हाँ जी, बोला लोन फार्म लिया हो एक। मैंने कहा सर लोन, बोला आप ITR भरते हो? मैंने कहा हाँ जी मैं भरता हूँ। बोला कितने साल से? मैंने कहा जी बिजनेस है मेरा, काफी टाइम से है। तो कितने की है? मैंने कहा जी ये भी मुझे नहीं पता, क्योंकि वो अकाउंटेंट के पास होती है, वो गुड़गांव होती है, यहाँ भी नहीं है। बोला कोई बात, आप संगत जी देखो मेरी कोई ITR नहीं देखी उन्होंने। तो वो बोले कितने का लोन चाहिए, कौन सी गाड़ी चाहिए? अब मुझे, मैं बोला जी कितने का लोन चाहिए, तो मुझे तो पता नहीं गाड़ी कितने की है। तो बोला आप ऐसा करो कोटेशन मंगवा लो। नहीं जी कोटेशन मंगा लूँ? बोला हाँ। तो उस वक्त क्या था संगत जी, PCO थे, फैक्स मशीन लगी हुई थे। तो मैं बैंक के पास ही, बिल्डिंग के पास एक PCO था, तो मैं वहां चला गया, और मैंने उसी लड़के के पास फोन किया जो मेरे पास सुबह आया। मैं बोला, मैंने कहा यार तू जरा कोटेशन भेज दियो एक अल्टो की विथ CNG। तो उन्होंने संगत जी मुझे फैक्स कर दिया, जहाँ मैं PCO में खड़ा था वहां से फैक्स से मैंने वो कोटेशन निकाली, और मैं मैनेजर के पास आया। उसने 3,20,000 की मुझे कोटेशन दी। तो बोले जी आप इसमें से कितना दे दोगे? मैंने कहा जी, मैंने भी वैसे ही बोल दिया, मैंने कहा शायद हो सकता, कहाँ देगा ये, ITR नहीं देखी इसने, वो नहीं देखी। मैंने कहा जी 61 के करीब दे दूंगा। तो वो छुट्टी मुझसे क्या बोलता है, जाओ 60,000 रुपये लेके आ जाओ और मैं आपका DD बनाता हूँ। बोला, मैंने कहा जी 60,000 रुपये लेके आ जाओ? बोला हाँ। अब मैं वहां से अपने मन में सोचने लगा कि यार ये मैनेजर क्या सोचेगा, कि यार इसके पास 60,000 भी नहीं है और गाड़ी लेने चल दिया। और थोड़ी मुझे वो फीलिंग सी हुई, तो मैं बोला ये तो तूने गलत कह दिया यार, तू गलत आ गया। चलो कोई बात नहीं, मैंने कहा मैं करता हूँ, दीपक के पास फोन करूंगा, दीपक से लेके आने पड़ेंगे। मैं अपने दिमाग में ये कुछ सोचता हुआ जा रहा था। इतने में देखो गुरुजी की मेहर और गुरुजी की कृपा, मैं बार बार ये कहूंगा कि गुरुजी कैसे, मैं गया तो एक MRF का शोरूम पड़ता है रास्ते में, उसने मुझे आवाज दी कि वो लाला जी से संबोधन किया, लाला जी सुबह सुबह कहाँ हो है? मैंने कहीं नहीं यार, बैंक तक गया। और मैं जैसे ही उसको नमस्ते करने पहुंचा उसकी दुकान पे, मैंने, मेरे मुंह से एकदम से निकला, मैंने कहा यार भाई साहब आपको 20,000 रुपये पड़ेंगे क्या? बोला हाँ हाँ क्यों नहीं। और उसने दराज खोली और 20,000 रुपये मुझे दे, मुझे 20,000 रुपये दिए। मैं बड़ा खुश हुआ, मैंने कहा यार ये तो मुझे लग रहा है किरण ने आज कही है, गुरुजी गाड़ी दिला। इतना कहकर मैं अपनी दुकान पे आता हूँ। अब संगत जी जैसे ही मैं दुकान पे पहुंचता हूँ, मैं अपने वर्कर से कहता हूँ यार वीरेंद्र, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे गुरुजी गाड़ी दिलाएंगे, पर यार दिक्कत ये आ गई, उसने 60,000 मांगे, पैसे मेरे पास 20,000 है, मैं वहां से लेके आया हूँ। बोला भाई साहब जब आप बैंक की तरफ गए थे तो डबल बैटरी का इन्वर्टर बिक गया, 25,000 की सेल हो गई। देखो गुरुजी सुबह सुबह ही एक डबल बैटरी का बिक गया, 25,000 की मेरी सेल हो गई 45,000। घर में जो इमरजेंसी के पड़े होते हैं संगत जी 15-1,000 रुपए जो रखे होते हैं एक साइड में, मैं फटाफट घर गया, मैंने वो 15,000 लिए, 60,000 लेके मैं 10 मिनट में वहां पहुंच गया। और उसने भी देर नहीं लगाई संगत जी, मैनेजर ने पहला लोन, पहला DD मेरी गाड़ी का था उस बैंक में, और मुझे 3,20,000 का उसने फटाफट DD बना के दे दिया।
अब संगत जी मैं घर आया, मैंने किरण से कहा कि चल गाड़ी आ गई, और वो बड़ी खुश। बच्चे स्कूल गए हुए थे, मैं बच्चों को उन्होंने कैम्ब्रिज स्कूल गया, मैंने कहा आज गाड़ी आ रही है, और बच्चे भी बड़े खुश होते हुए, तीनों, जो ये बड़ा लड़का है, ये तीनों बच्चे बड़े खुश कि आज हमारे गाड़ी आएगी। मैं आपको बता नहीं सकता, गाड़ी का भी एक, आज तो इतना क्रेज नहीं, उस वक्त बड़ा क्रेज था। मैं बड़ा खुश हुआ, मैंने कहा गाड़ी आ रही है, गाड़ी आ रही है, बच्चे भी खुश। अब साहब हमने गुड़गांव हरियाणा रोडवेज में, मैंने उस लड़के को फोन किया, भाई मैं गाड़ी लेने आ रहा हूँ, एक वाइट रंग की गाड़ी, आप रेडी रखो और मैं डीडी दूंगा और गाड़ी ले जाऊंगा। अब संगत जी बड़े खुश, बच्चे खुश। मैं हरियाणा रोडवेज खड़ी हुई थी फरूखनगर की बस अड्डे, और मैंने उसको बोल दिया तुम मुझे बस अड्डे लेने आ जाना। और जैसे ही मैं हरियाणा रोडवेज में बैठा, दिमाग में एकदम से ये आई कि यार नरेश, गाड़ी तो तुझे चलानी ही नहीं आती, तूने तो कभी स्कूटर ही नहीं चलाया, स्कूटी नहीं चलाई, गाड़ी चलाएगा कौन, वहां से लेके जाएगा कौन। और जैसे ही ये कहा, और मैंने कहा यार ये तो तूने बड़ा नुकसान कर लिया, अब 8-9 हजार का तुझे ड्राइवर रखना पड़ेगा, ये भी खर्चा बना लिया। बच्चे तो खुश हो रहे थे और मेरे टेंशन चालू हो गई कि यार तुझे गाड़ी चलानी नहीं आती, गाड़ी तू लेके आ गया, और ड्राइवर अलग से रखना पड़ेगा, वो कितने दिन में तुझे सिखाएगा, कितने दिन में नहीं जाएगा। अब ये बच्चे बोले, जैसे ही मेरे सोचते सोचते वो गुड़गांव का बस अड्डे आ गया, क्योंकि जब ट्रैफिक भी नहीं होता था, 30 मिनट का रास्ता होता था, तो जैसे ही मैं बस अड्डे उतरा, तो वो जो डेमो, मतलब मेरा जो पड़ोसी था वो खड़ा हुआ था, उसने गाड़ी में बिठाया, मुझे वो वहां ले शोरूम, अपना में शोरूम में मैंने डीडी दिया, व्हाइट रंग की गाड़ी मेरे उसने दिया। तो जैसे ही गाड़ी की चाबी देने के लिए आए, तो वो मुझसे बोलती है मैडम कि सर आप गाड़ी को स्टार्ट करें, मैं आपका फोटो खींचूंगी और आप साइड में बैठ जाइए, और मैं सामने से आपका फोटो ले लूँ। मैं बोला मैम मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती, आप एक काम करो, ये जो लड़का है ना, ये लड़का गाड़ी ले चलेगा, फिर आप इसको दे देना। नहीं नहीं सर, ऐसी क्या बात है, आप इनको सर को बाद में देना, पहले चाबी स्टार्ट करके दे देना, लेकिन स्टार्ट आप करो। मैम मैंने कभी जिंदगी में स्टार्ट ही नहीं करी गाड़ी, मैंने कभी स्कूटर तक नहीं चलाया, मुझे कुछ नहीं आता। बोला सर इसमें क्या है, स्टार्ट करके फिर चाबी सर को दे देना आप, लेकिन गाड़ी आप ले रहे हैं तो एक बार स्टार्ट आप अपने हाथ से करो। और वो जिद करने लगी, तो मैंने कहा ठीक है भाई स्टार्ट कर देता हूँ। तो जैसे ही मैंने खिड़की खोली, दरवाजा खोला, मेरे पास गुरुजी का स्वरूप था, जो मैं घर से लेके गया था। मैंने सबसे पहले गुरुजी को बिठाया, मैंने कहा गुरुजी गाड़ी आपकी, ड्राइवर आप, मालिक आप, मैं तो इसमें सवार ही बैठा हूँ, करना और कराना आपने है, आप जानो और आपका काम जाने। और मैंने वो इतने ही करते ही उसने कहा सर मैं, वो आगे खड़ी हो गई कैमरे पर, कैमरा लिया उसने और वो सामने। अब मुझे ये भी नहीं पता था ये न्यूट्रल में करके स्टार्ट होती है, क्योंकि मेरे को अभी जिंदगी में मैंने गाड़ी स्टार्ट, और वो फर्स्ट गियर में लगी हुई थी, मेरे से वो बार बार मैडम कह ही रही थी कि स्टार्ट करो स्टार्ट करो। जैसे ही मैंने वो चाबी घुमाई, और चाबी घुमाती वो गाड़ी थी स्टार्ट, और वो मैडम के ऊपर, और मैडम अलग, कैमरा अलग। वो बोली कि सर क्या करते हो, आपने गाड़ी भी न्यूट्रल नहीं करी, वो नहीं करी, अभी गाड़ी भिड़ जाती, वो हो जाती। मैं भी घबरा गया, मैंने कहा मैम मैं तो पहले ही कह रहा था मुझे कुछ नहीं आता। बोला सर उतरिए, आप उतरिए, सर को चलाने दीजिए। अब वो जो लड़का था, मैंने उससे बोला, मैंने कहा यार तू गुरुजी के पास ले चल, मेरे को गाड़ी गुरुजी से ब्लेस करा। तो गुरुजी की कृपा, गुरुजी की मेहर क्या किया कि मैं जैसे ही गया, वो लड़का मेरे साथ ड्राइविंग सीट पे बैठा, मैं उसकी कंडक्टर सीट पे बैठा, और हम लोग बड़े मंदिर के लिए गुरुजी के पास गए। अब जैसे ही देखो गुरुजी ने वहीं हमें थोड़ी सी रिमझिम सी बारिश करी, अमृत वर्षा करी, मैं बड़ा खुश हुआ। हमने उस वक्त गाड़ी गेट के आगे, बिल्कुल अब तो खैर नहीं, लेकिन उस वक्त गेट के आगे गाड़ी खड़ी करी, मैं गुरुजी के पास गया, गुरुजी से गाड़ी ब्लेस कराई। गुरुजी ने ब्लेस करके मुझे गाड़ी, मैं आया बाहर जैसे ही, तो वो लड़का मुझसे बोलता है कि अंकल आप इधर बैठो ड्राइवर सीट पर, और मैं साइड में बैठता हूँ और आप गाड़ी चलाओ। मैं बोला भैया बेटा मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती है, तू लेके चल घर। बोला नहीं नहीं आप बैठो। जैसे ही संगत जी मैं उस ड्राइविंग सीट पे बैठा, उस दिन का दिन है और आज का दिन है, मैं गाड़ी से उतरा नहीं, गाड़ी एक ही दिन में, एक ही टाइम में मुझे गाड़ी चलानी गुरु जी ने सिखाई। और उसके बाद हमेशा मैं मंदिर आता सोमवार के दिन। बीच बीच में इसमें भी बड़े सत्संग हुए, क्योंकि जिस दिन मैं रात को गाड़ी लेके आया, हम रात को पहुंचे, उस लड़के ने गाड़ी अंदर खड़ी कर दी,
मेरा जो मकान है एक छोटी सी गली आती है संगत जी। अब मैं क्या करता, मैं सिर्फ गाड़ी को यूज करता सिर्फ मंदिर के लिए, बड़े मंदिर के लिए। तो जैसे ही सोमवार आता, बच्चे जाते या यहाँ एम्पायर से जाता, उसके लिए निकालता। तो एक बार क्या भी करता, मैं टैक्सी में जाता स्टैंड पर और किसी ड्राइवर को पकड़ के लाता और उससे कहता कि इसको मेन रोड पे लाके खड़ी कर दे। वो ड्राइवर उसको मेन रोड पे खड़ी कर जाता, मैं उसको बैठता, जैसे तैसे मुझे, चाहे कहीं बंद हो रही है, कहीं पहला गियर लग रहा है। जो मैं आज डरता हूँ कि मैंने, गुरुजी ने मुझे कैसे गाड़ी चलानी सिखाई, मैं आपको बता नहीं सकता। सामने से कोई गाड़ी देखता तो पहले ही खड़ी कर लेता, और पहले ही खड़ी हो जाता, जो वो पास हो जाती जब मैं निकलता। तो गुरुजी ने मुझे कैसे ड्राइवर बनाया, ये संगत जी, ये मैं जानता हूँ या गुरुजी जानते हैं। लेकिन मुझे कभी ड्राइवर की जरूरत नहीं पड़ी, मुझे कभी कुछ नहीं। उसके बाद कई गाड़ियां आई, सेंट्रो आई, ट्यूब, मतलब काफी गाड़ियों का वो हुआ। लेकिन गुरु जी की मेहर से पहले दिन से लेकर और आज तक कभी भी मैं रुका नहीं। गुरु जी का आशीर्वाद मेरे पास हमेशा बना रहा और गाड़ी चलती रही और चल रही है। थैंक यू गुरु जी, सो मच, शुक्राना नरेश अंकल, जी। बहुत बहुत धन्यवाद। अ, थैंक मुझे याद है, कंक्लूड करने से पहले मैं जरूर बोलना चाहूंगा कि संगत यकीन नहीं करती थी कि आंटी इस तरह से ठीक हो सकती है। तो हम जब अपने सत्संग किया करते थे, तो आपको जी। याद हो, मैं आंटी से रिक्वेस्ट करता था कि एक बार खड़े होकर संगत को दिखा दो कि ऐसा मिरेकल भी होता है। बिल्कुल बोलते थे अंकल, बिल्कुल जी। बोलते थे, और याद है और मुझे। तो आपका प्यार, मैं तो कहता हूँ कमांडर, जो गुरुजी वैसे भी कमांडर, गुरुजी ने आपको वैसे भी कमांडर बनाया हुआ है गुड़गांव के अंदर। आपने जो ओरा कर रखा है, बस पूछो मत। अंकल, बहुत बढ़िया। एक ऐसी उम्मीद है कि एक दिन मैं भी आप जैसा भगत हो पाऊंगा, उस तरह से अरे नहीं सरेंडर कर अंकल, पाऊंगा जैसे मेरी आपने आपके किया आगे है। मैं क्या हूँ, कुछ नहीं अंकल। थैंक यू सो मच अंकल। थैंक बहुत खूबसूरती से आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया संगत के साथ। बेटे ने बुक रीडिंग की। बहुत बहुत महाराज का शुक्राना। वासन अंकल, जय प्लीज। गुरु यू, जी महाराज। शुक्राना। जय गुरु जी महाराज। अंकल, बहुत ही प्यारा सत्संग आपने किए हैं। सबसे सबसे ज्यादा मुझे तो कार वाला सत्संग बहुत अच्छा लगा, थैंक यू अंकल, टू थैंक यू वेरी अंकल। फ्रैंक। और इसके बाद, शुक्राना बिल्कुल। अंकल 2007 के बाद के भी आपके सत्संग काफी हैं, वो हम्म। प्लीज वो भी सुना सकते हैं आप? अंकल उसके बाद के सत्संग तो काफी हैं, जैसे अभी अंकल पूरे एक बारी, 20 मिनट है हमारे पास। 20 मिनट में आप 15 मिनट तक सुना सकते हैं सत्संग, प्लीज। एक बार क्या था अंकल कि एक बारी हमारे छोटा जो भाई है, उसका, उसकी जो वाइफ को एक बारी ऊपर ला, यानी कुछ इस टाइप से आ गया था, जिसको बोलते हैं कि किसी शादी, किसी में उसमें गया था वो, शादी के अंदर। तो वहां उसने, जैसे शादी में लास्ट में उसने सफेद रसगुल्ला खा लिया, और वो वहां उसके ऊपर ना नमकीन खा के आया, कुछ खा के आया। उसके ही पड़ोस में कोई जवान डेथ हुई थी, लेडीज की, किसी ने आत्महत्या कर ली थी। वो आत्मा वहां भटक रही थी, और जैसे ये गाड़ी में बैठा तो वो आत्मा इसके साथ लग गई। और जैसे ही ये अपने घर पहुंचा, और घर पहुंचते ही इसने, ये मैं गुरुजी के सामने की बात बता रहा हूँ, जो गुरुजी साक्षात अपने उसमें थे। तो जैसे ही वो वहां पहुंचा, अपने घर पे, बीडी स्टेट तिमारपुर रहता है वो। तो जैसे ही घर पे पहुंचा, उसकी वाइफ ने गेट खोला, और गेट खोलते ही वो आत्मा उसमें से निकलकर उसमें आ गई। अब आते ही उसने क्या, जैसे वो अंदर गया, उसमें से बड़े बड़े, तो वो उसकी आवाज चेंज हो गई उसकी वाइफ की। वो बोलता है, पूजा नाम है उसकी वाइफ का। तो उसने कहा पूजा, वो बोले मैं पूजा नहीं हूँ। तो एक दो बार तो उसने जैसे बोला, तो वो समझने लगा कि ये मजाक कर रही है। लेकिन जब उसने देखा कि इसकी तो आवाज भी चेंज हो रही है, तो वो घबराया। उसने कहा तू कौन है, इनको ऐसे ऐसे मेरी किसी ने मुझे कर दिया है, मैं वो हूँ, और मैं इसको लेके जाऊंगी, पूजा को लेके जाऊँ। जी वो अकेला रहता था, दो बच्चे थे उसके, लड़कियां छोटी छोटी थी। वो घबराया। तो उसने तुरंत पहले मेरे पास फोन किया कि भाई, ये मैं अभी अभी एक आया हूँ, ये पूजा देखने, ये कैसे बदतमीजी से बोल रही है। मैंने कहा ला मुझे बात करा। तो जैसे ही मैंने बात करनी चाहिए, तो उसने मुझसे भी कहा मैं पूजा वूजा नहीं बोल रही हूँ, मैं वो बोल रही हूँ, और मैं तुम्हारी बहू को लेके जाऊंगी और वो करूंगी। मैंने कहा यार ये क्या हो गया। मैंने तुरंत छोटे जो बीच का भाई है दीपक, मैंने उसको फोन किया। मैंने कहा यार तू नोएडा, वो नोएडा रहता है,
मैंने कहा एक बारी तू देख अनिल के पास जा फटाफट, और ऐसे ऐसे कोई बात हो गई है, वो घबरा रहा है। संगत जी उसने गाड़ी उठाई, और वो एक चौधरी अंकल हैं वहां पर, तो उन दोनों को वो गए, बीडी स्टेट गए, तो उन्होंने देखा, फिर उन्होंने मेरे से, क्योंकि मैं दूर रहता हूँ, तो उन्होंने मुझसे कहा कि तेरे को तो आने की जरूरत नहीं है, इसे मैं नोएडा लेके जा रहा हूँ, कोई बात नहीं। अब वो संगत जी पूजा हमारी जो है उस गाड़ी में नहीं बैठी, एसेंट गाड़ी हुआ करती थी उन दौरान, तो वो गाड़ी पे ना बैठे, इतना जबरदस्ती उसको खींच के गाड़ी में बिठाया। जैसे ही गाड़ी में बिठाया और उसको नोएडा ले गए, सारी रात उसने वो तहलका मचाया, हम बता नहीं सकते नोएडा के अंदर। दूसरे दिन सुबह हम भी पहुंच गए। अब हमने कहा, तो किसी ने मुझसे कहा कि आप, ऐसा है इसको पतला आ गया है, आप किसी बाबा के पास जाओ और ये उतरो। तो किसी ने हमें मोहन बाबा के वो रेफरेंस दिया, तो वहीं पे नोएडा में किसी मोहन बाबा के पास ले गए, तो उसने, संगत जी वहां उसके पता क्या क्या किया मैं बता नहीं सकता, और उसने उसको निकाल दिया है। और निकाल कर उसकी हमने देखा, बहू की हालत बड़ी खराब कर दी थी उसने, क्योंकि बाल खींचे वो खींचे। तो अब उसने वो शीशी में एक में वो उसने वो दी, लगा जी इसको कहीं दबा देना और आप ठीक हो, वो ठीक हो, हम अपने अपने घर। बात खत्म हुई, एक ही हफ्ता होगा, भगवान जाने वो शीशी टूट गई या क्या हुआ, वो जैसी टूटी वो तो फिर उसमें आ गई। अब हम जैसे वो आई, फिर वो इस तरीके से बोले कि तुम क्या सोचते हो, मैं इसे छोड़ दूंगी, मैं इसे लेके जाऊंगी और वो करूंगा। अब साहब हम तो डर गए। हम तीनों भाइयों ने मीटिंग करी कि क्या करना चाहिए। जैसे ही हम बात करने लगे, तो हमने कहा यार रोज बाबाओं के चक्कर में जाएंगे, पूजा की हालत खराब कर देंगे तो मारपीट कर, ऐसा करना चाहिए क्या। तो फिर एकदम से दीपक बोला, यार गुरु जी के पास लेके चलते एम्पायर स्टेट। मैं बोला है यार गुरु जी कोई भूत प्रेत उतारते हैं क्या। बोला नहीं यार, गुरु जी के आज गुरु जी के लेकर चलते हैं। हमने जैसे ही मीटिंग करी, अब हमने इसको बिठाया गाड़ी में, और हम एम्पायर स्टेट आए। जब एम्पायर स्टेट में क्या है, गाड़ी अंदर किसी किसी को जाने देते थे। तो हमने गेट पे पहुंचे, तो हमने उनसे रिक्वेस्ट करी सेवादार से कि प्लीज हमें वहां जाने दो, इसकी हालत ऐसी है, हमें गुरुजी के गेट तक गाड़ी जाने दो। तो उन्होंने हमारी गाड़ी को जाने दिया। और जैसे ही हम एम्पायर स्टेट के गेट के आगे आए, संगत जी मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, वो गाड़ी के नीचे से नहीं, उसने यहाँ तक, मेरी सिस्टर मेरे साथ थी जयपुर वाली, तो उन्होंने उसके हाथ पे खा लिया, यानी हाथ छुड़ाने जैसा हाथ से बाहर खींच लेते। तो सब देख रहे थे वहां, सिंगला अंकल वगैरह सब, संगत भी देख रही थी, ये कर क्या रहे हैं, एक लेडीज के साथ जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं। उनको तो ये लग रहा था जैसे हम जबरदस्ती नीचे उतार रहे हैं, लेकिन वो तो ताकत ऐसी थी कि वो नीचे उतर कर राजी थी। लेकिन हमने उसे जैसे तैसे, खाने की परवाह नहीं करी, हम उसे नीचे उतार के लाए संगत जी। और जैसे ही नीचे उतार कर लाए, और जैसे ही गुरु जी के सामने हम जैसे सीढ़ी से उतर के जैसे ही हम मुड़ते थे, सामने गुरु जी बैठे होते थे। दोनों साइड से पूजा को एक साइड से सिस्टर ने पकड़ रखा था, एक साइड से हम मैंने पकड़ रखा था, या छोटे भाई ने पकड़ रखा था, अनिल ने ही पकड़ रखा था। जैसे ही हम अंदर गए, तो गुरु जी ने देखा, और देखते ही बोले, कितो कितो आ जाती है फिर ना ही थे। और इतने लड़े, मतलब लड़कर बोले गुरु जी, मैं आपको संगत जी बता नहीं सकता, हमने सोचा गुरु जी ने हमसे बोला, और हमारे आंखों में पानी आ गया कि गुरुजी ने तो हमारे सब संगत के आगे हमसे बोल दिया कि कितो कितो आ जाते फिर ना आई। पर जैसे ही गुरुजी ने बोला, और वैसे ही पूजा ऐसे बैठ गई जैसे कुछ था ही नहीं, और वो चुपचाप शांत। और फिर गुरुजी ने कहा, चल एनु एक गिलास पानी लेके आ सिंगले। अंकल ने ला के आधा से गिलास सिंगलेट में उसको पानी दिया। उस दिन का दिन है, और आज का दिन, आज पता लगता है कि गुरुजी ने किससे कहा कि कितो कितो आ जाती है फिर ना आई थे। तो ये है हमारे लिए। हम बड़े परेशान हो रहे थे, बड़ी मारा पीटी होती, बड़े पैसे लगते, फिर भी शायद हम उसको ठीक नहीं कर पाते। गुरुजी के मात्र दर्शन से, गुरुजी के एक सिर्फ, हमें पता भी नहीं था, हम तो वैसे ही गुरुजी के पास लेके आए, और गुरुजी ने एक सेकंड में ही उसका उद्धार कर दिया, उस आत्मा का भी उद्धार कर दिया, और हमारा तो कर ही दिया। ऐसे हैं हमारे गुरु। तो ये संगत, ये सत्संग था गुरुजी के, जब गुरुजी चोले में, गुरुजी चोले में था, फिर भी एक लिमिट थी। अब गुरुजी अपार हैं। अब तो गुरुजी ऐसी ब्लेसिंग दे रहे हैं कि लेने वाला चाहिए, आपके भाव चाहिए,
आप कैसे ले रहे हैं, किस रूप में ले रहे हैं, इतना दे रहे हैं कि आप उसको समेट भी नहीं सकते। वही बात है संगत जी, जैसे मैंने आज संगत सुनाया, तो जैसे मैंने कहीं ये सत्संग सुनाया होगा तो किसी अंकल ने ये सत्संग सुना, और वो गुरु जी के चोले छोड़ने के बाद, वो कपल थे, वो कहीं गए थे, तो वहां उसके होटल में कोई आत्मा लग गई, और उसने पता नहीं कहाँ मैंने सुनाया, तो उसने आके उन्होंने फोन किया कि अंकल ऐसे ऐसे आपके उनके हुआ था, क्या करा। हमने कहा हमारे तो क्या है, हमारे साक्षात भोले बाबा शिव बैठे हुए हैं, बड़े मंदिर जाओ अंकल, वहाँ बैठे हैं गुरु जी, अपना आप कर देंगे। और संगत जी, वो बाद में उनका फोन आता है कि मैं इनको बड़े मंदिर लेके गया, मैंने समाधि में इसकी मत्था टिकवाया, मेरी आंटी ठीक हो। जय तो गुरु जी। ऐसे हैं हमारे गुरु जी, साक्षात शिव रूप आज भी विराजमान है, वो सबका कल्याण कर रहे हैं। हमारे भाव चाहिए कि हमें कैसे जाना है, हमें किस तरीके से जाना है। गुरु जी के सिस्टम से अगर हम चलते हैं, गुरु जी के जो बोले हुए वचन पर हम चलते हैं, तो आज भी गुरु जी हमें साक्षात सामने दिखाई देते हैं। आज भी गुरु जी हमें साक्षात हमारी हेल्प करते हैं, हमारा उद्धार करते हैं, हमारा कल्याण करते हैं। ऐसे हैं हमारे गुरु जी। थैंक यू सो मच गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी दासन अंकल। महाराज। जी अंकल, शर्मा अंकल प्लीज। नहीं, मैं तो खाली ये कह रहा था कि नरेश गुप्ता अंकल अगर एक बार हमें ये भी बता दें कि इस तरह का भाव आता कैसे है, जैसा आपके पास हमेशा से है, और कैसा नहीं होना नहीं चाहिए, तो संगत नहीं को अंकल, थोड़ा तो आप पता चले। जो भी गुरु जी बताइए की अंकल संगत, प्लीज। सब में इतना भाव है अंकल, मैं तो न्यूट्रल होके जाता हूँ। मैं तो वहां जाता हूँ गुरु जी के पास, तो मैं तो आज भी ऐसे जाता हूँ, मैं आप संगत सुना रहा हूँ तो मैं तो सोच रहा हूँ गुरु जी सामने बैठे हैं, क्या सुनाना है, किस सुनाना है, मुझे कुछ नहीं पता, मैं जीरो हूँ। जो कुछ कर रहे हैं मेरे गुरु जी कर रहे हैं, मेरे प्रभु करते हैं, और आज भी मैं तो न्यूट्रल होके जाता हूँ, मेरा कुछ नहीं है, गुरु जी के सिवा कुछ नहीं है। मैं तो गुरु जी के पास जाता हूँ, गुरु जी मैं खाली हूँ, खाली ही रहूंगा, बस आप मेरे साथ रहें, आपका आशीर्वाद मेरे ऊपर रहे, सारी संगत के ऊपर रहे, सारी गुरु परिवार के ऊपर रहे। और आप सब बड़े भाग्यशाली हैं। कमांडर अंकल के इतने भाव हैं, कमांडर अंकल का तो एक खजाना रखते हैं अपने पास, इतने सत्संग, इतने तरीके से और इतने भाव से कहते हैं कि मैं तो उनके आगे कुछ हूँ, कुछ नहीं, तुच्छ हूँ बिल्कुल। और इनका प्रेम, इन्होंने ऐसा समा बांध रखा है कि मैं आपको बता नहीं सकता। और गुरु जी की मेहर देखो, गुरु जी की कृपा देखो कि गुरु जी की आप सब जितनी भी गुरु परिवार हैं, जितने भी गुरु की संगत है, आज जो भी बड़े मंदिर जाता है, कोई खाली और नहीं है, सबको गुरु जी देते हैं। लेकिन बस न्यूट्रल होके जाओ, गुरु जी के पास कोई भी बहन, कोई भी अकल, कोई भी किसी ईगो कुछ नहीं लेके जाओ। सामने ना कोई बिचौलिया है गुरु जी के बीच में और आपके बीच में। जो करेंगे गुरु जी करेंगे, जो करें, जो अच्छा होगा तो गुरु जी करेंगे, गलत होगा वो भी हमारे लिए अच्छा। मैं तो संगत से यही कहूंगा कि आप न्यूट्रल होके जाएं, फिर देखें कि गुरु जी की कृपा कितनी कितनी। सो मच, शुक्राना। जय थैंक यू गुरु सो जी मच। महाराज। जय गुरु जी महाराज। नरेश अंकल, मैं आपकी एक बात को एंडोर्स नहीं करता, जो कि आपने कहा था कि शर्मा अंकल ने गुड़गांव में बड़ी धूम मचाई हुई है। पूरे गुड़गांव में नहीं, पूरे संसार में पूरे गुरु संगत जो है कमरनाथ शर्मा अंकल को अपना आदर्श मानती बिल्कुल है, बिल्कुल 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 अपना आदर्श मानती बिल्कुल है। बिल्कुल। और लेकिन जिस भाव से कमरनाथ शर्मा अंकल अपनी सत्संग सुनाते हैं, अजी बस, बहुत वो सुंदर, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर तरीके से वो करते हैं। तो हम तो बहुत धन्य हैं कि इस जन्म में गुरुजी महाराज ने हमें कनेक्ट किया, और इस जन्म में हमें आप लोगों से सत्संग सुनने को मिल रही हैं। आने वाली जो पीढ़ियां हैं 30-40 साल के बाद, उनको आप लोग नहीं मिलेंगे। सच्ची, हम लोग नहीं मिलेंगे उनको। बोल कितने ठीक है, भाग्यशाली हैं कि आप लोगों से रूबरू हम लोग बात कर रहे हैं। और इस ठीक और हमें क्या चाहिए। ये जो ठीक है। महाराज ने जो कृपा की है, गुरु महाराज ने बहुत कृपा की है। एज ऑन डेट जो गुरु संगत है, कि हमें कमलेश शर्मा अंकल, नरेश अंकल, आप और समूची जो और संगत है, उनसे सुनने को मिलता है, और कल्याण होता है, और वो ब्लेसिंग बढ़ती ही हैं, कम नहीं होती हैं, बहुत बढ़ती हैं। बहुत ही प्यारा सेशन रहा आज का। कमलेश शर्मा अंकल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप तो इतने प्यारे गुरु संगत हैं कि आपको एक सेकंड में हम फोन करते हैं तो आप फौरन शहर स्वीकार कर लेते हैं। सच्ची काबिले तारीफ है। मतलब मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा।
हम सब गुरु परिवार आपका आभारी है, आप सबका आभारी है जो कि आप लोग समय देते हैं। इसी के साथ ही गुरु परिवार आज निहाल हो गया। गुरु महाराज से अब हम आज्ञा लेंगे।